नमस्कार नमस्कार एंड थैंक यू राजेंद्र। आई थिंक जब राजेंद्र को देखता हूं तो अभी तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई मुझे राजेंद्र से व्हेन वी बोथ वर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। लेकिन उसके पहले जब मैं नया नया रोटरी में आया था तो मुझे बहुत डर लगता था। एक राजेंद्र है, एक आपके वहाँ सुभाषिष, ऐसा लगता है कोई प्रोफेशनल लोग है, बहुत टेक्निकल लोग है। और राजेंद्र को आप देखो, अभी तक जो भी काम उसने रोटरी में लिया है ना, वो सबसे डिफिकल्ट है। मतलब बंदा रोटरी में जॉब लेने को तैयार ही नहीं होता है, उसको मेंबर मिलते नहीं डिस्ट्रिक्ट में। वो जो भी पोर्टफोलियो लेता है ना, वो सबसे अलग है। मतलब वो खाली राजेंद्र रुया ही कर सकता है। बट लेट मी टेल यू, व्हेन we both worked in 2019 as a district secretary, I think that was the year I found internal side, other side of Rajendra, and such a lovely and fabulous human being. And I think this is what Rotary has given me in my life. Great friends. And another person I would like to acknowledge from your club is Kumar Hansraj. If whatever I have done in Rotary as a sergeant, I think that person is responsible. I am a great admirer of him, and what a fabulous gentleman. जब भी मैं डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में आता था, जब मैं नया नया रोटरी में आया, तो I used to watch him. उसका जो स्टाइल था, and those days he was the only sergeant, जो एक ही sergeant पूरा डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस मैनेज करता था, and used to always punch me in my stomach कि भैया पेट बाहर नहीं आना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छी करो. He also used to lot of motivate me. And he was responsible for inviting me in 2004-5 when our district hosted Rotary Institute along with the governor-elect's training seminar. And that time Rahul was the governor-elect. And I worked there as a sergeant for 3 days. And that was an awesome experience. And Rahul saw me working. And that's how Rahul gave me first opportunity in 2005-6 to become a sergeant at arms. Namaskar दोस्तों, and President Manoj, Secretary Hima, Program Chairman Ashok Devra. Thank you Harminder for well in advance invited me for this today's talk, and Aslam for coordinating. I think I have many friends in your club, and I always look at your club with a very one of the most disciplined organization in our district. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर कोई नए मेंबर को आप इंडक्ट करते हो किसी भी क्लब में, तो आपको रोटरी सेंटर का विजिट कराना चाहिए। रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट का एक विजिट कराना चाहिए नए मेंबर को, तो उनको एक विजिट के अंदर पूरा रोटरी समझ में आ जाएगा। एंड आई हैड अ ग्रेट मेमोरी विथ रोटरी सेंटर। मैं हमेशा कहता हूं कि डोंट बी सीरियस इन लाइफ, डोंट बी सीरियस इन लाइफ। तो काफी टाइम मुझे लोग बोलते हैं, अरे सीरियसली काम नहीं करेगा तो काम कैसे होगा? तो मैं बोलता हूँ सीरियसनेस को आप ऑल्टर करिए सिंसियर के साथ। So whatever you do it sincerely. I think we don't require to be serious. और मैं आजकल देखता हूँ रोटरी बहुत ज्यादा सीरियस होने लगी। लोगों को सुनता हूँ कि यार रोटरी में भी मजा नहीं है। और खास करके लास्ट 4-5-6 महीने के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, रोटरी का पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। किसने सोचा था कि इंसुलेशन ऑनलाइन हो सकते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑनलाइन हो सकता है। I think we are in a completely different world, but there is a humor in this. Every step, if we have that eye to look at it, I think life is beautiful. Rotary is an amazing organization. I owe everything to Rotary. When Rajendra read my biodata, I started a very humble beginning in Mumbai, but all transformation of my life, personal and professional, has come through Rotary. Had I not been a Rotarian, I would have been a builder. Maybe I would have earned more money, but I think the kind of internal transformation as a human being which has happened in my life, I think that completely I owe it to Rotary. So first of all, thank you very much for inviting me today. And I always tell people, one of the most costliest thing in life is not money, it is not time, it is attention. So thank you for giving that attention to me. And if you are with me for another half an hour, I guarantee you, you will see Rotary from different perspective, from my eyes. And henceforth, whenever you go to Rotary, maybe in a meeting, maybe in project, you will always smile. So that is the purpose of my life. Rotary helped me found purpose
and the purpose of my life is to spread smile wherever I go and whatever I do in my life. दोस्तों रोटरी में अभी जैसे आज हम लोग ऑनलाइन काफी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही है, मैंने फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट असेंबली ऑनलाइन होते हुए देखा। पहले ऐसा होता था डिस्ट्रिक्ट असेंबली के दिन हम लोग सुबह सुबह में जल्दी घर से निकलते थे तैयार होके, प्रेसिडेंट गवर्नर नया सूट पहन के जाते थे डिस्ट्रिक्ट असेंबली में। ऑल प्रेसिडेंट एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो भी डिस्ट्रिक्ट असेंबली में जाते थे, दैट वाज अ फ्रेश सूट, चाहे शूज से लेके सॉक्स से लेके एवरीथिंग वाज न्यू, because for them it was a great moment of celebration. इस वर्ष मैंने क्या देखा, जनरली डिस्ट्रिक्ट असेंबली 9 बजे के आसपास स्टार्ट होती है, हम लोग फेलोशिप पे पहुंचते हैं और जो चीफ गेस्ट होते हैं खास करके डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर जो रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर रहते हैं, वो लोग बहुत जल्दी पहुंचते हैं। और इस बार मैंने देखा जब ऑनलाइन हो रही थी डिस्ट्रिक्ट असेंबली, तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर, ये सारे लोगों ने चाय पीते पीते डिस्ट्रिक्ट असेंबली को एड्रेस किया है। नए नहीं वो लोग, अपने घर के अंदर बैठ के आराम से रिलैक्स होके दे हैव एड्रेस द डिस्ट्रिक्ट असेंबली। एंड डिस्ट्रिक्ट असेंबली में पैरेलल सेशन होते, तो पैरेलल सेशन में रफीक लोलानिया एक सेशन ले रहे थे और उसमें ऐसा था 10-10 मिनट का टाइम दे रहे थे स्पीकर को, और स्पीकर बात करने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर होते थे। देखिए टेक्नोलॉजी के साथ में भी कितनी सारी ह्यूमर हो रही है। तो मैंने देखा, आई वॉज अटेंडिंग दैट सेशन, और जैसे एक स्पीकर का बात खत्म हुआ, रफीक लोलानिया ने दूसरे एक स्पीकर को इनवाइट किया, एंड बिफोर दैट स्पीकर स्टार्ट्स उनका वीडियो अचानक बंद हो गया और थोड़े टाइम के बाद उनका ऑडियो भी बंद हो गया। एंड नाउ एवरीबडी वाज एकदम कि क्या हो गया, एंड रफीक लोलानिया एंड सब लोग बोल रहे थे क्या हो गया, स्पीकर कहाँ गए, एंड रफीक लोलानिया आराम से बोले, एकदम पॉज लेके, कि फ्रेंड्स आई थिंक वी हैव लॉस्ट द स्पीकर। ऐसा करके वो रुक गया। तो मैंने रफीक को फोन किया, मैं बोला भैया स्पीकर इधर से निकल गए, वी हैव नॉट लॉस्ट द स्पीकर। और उतने में अचानक स्पीकर ने चैट बॉक्स के अंदर एक मैसेज डाला। चैट बॉक्स में मैसेज आता है, सॉरी फ्रेंड्स, आई हैड सम प्रॉब्लम विथ माय वाइफ, आई विल ज्वाइन यू सून, ऐसा करके मैसेज आया चैट बॉक्स में। और सब लोग टेंशन में हो गए, कोरोना का टाइम है, तो सबको लगा अरे क्या हो गया। और इतना डिस्कशन चालू है, उतने टाइम में 5 मिनट के बाद वापस स्पीकर का ऑडियो चालू हो गया, वीडियो चालू हो गया, एंड ही वाज बैक। तो रफीक भाई ने वापस स्पीकर को पूछा कि बॉस क्या हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, घर पे हाउ इज योर वाइफ। सो इसे वाइफ को क्या प्रॉब्लम है, अरे आपने चैट बॉक्स में डाला ना कि यू हैव सम प्रॉब्लम विद वाइफ। इसे नहीं वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आई हैड अ प्रॉब्लम विद माय वाईफाई। सो हमारे आसपास छोटी छोटी चीज आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, कुछ ना कुछ होता रहता है। मैंने एक संडे को मुझे बुलाया कि ऑनलाइन जब से हो गया तो खट्टी मीठी बातें, लोग रिलैक्स होना चाहते हैं, इतना सारा स्ट्रेस है। तो संडे क्लब ने मुझे बुला लिया संडे मॉर्निंग में, और मैं कोशिश करता हूँ कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन हो जाओ। आज थोड़ा मैं ऑनलाइन टॉपिक डिस्कशन के अंदर भी आज स्पीकर लेट होते होते बचा है। आई वॉज कमिंग फ्रॉम अंधेरी माई ऑफिस, और हाईवे पे इतना ट्रैफिक था, आई रीच्ड एट 7:45 एट माई होम, और फ्रेश होके यहाँ आते आते मुझे उतना टाइम लगा। अगर मैं लेट होता था तो आज ऑनलाइन होने के बावजूद भी स्पीकर ट्रैफिक की वजह से लेट होता था। ऐसा एक पहला एक्सपीरियंस हो जाता था रोटरी क्लब के अंदर। तो बहुत सारे इश्यूज हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। तो संडे को उस दिन मुझे इनवाइट किया। संडे मैंने थोड़ा जल्दी फेलोशिप के टाइम पे अपना वीडियो बंद रख के वो क्लब के अंदर ज्वाइन कर लिया, और मैं देख रहा हूँ सब फेलोशिप हो रही है, और ऑलमोस्ट मीटिंग स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले एक रोटेरियन को उनकी वाइफ का आवाज आ रहा है पीछे से, वीडियो चालू है, बोले जल्दी आ जाओ जरा किचन में काम है। तो उसने बोला अभी मीटिंग स्टार्ट हो रही है, स्पीकर आ रहा है अभी 2 मिनट के अंदर। वो वाइफ बोलते अरे स्पीकर को मारो गोली, वॉशिंग मशीन में से पहले कपड़े निकालो। So this is actually happening around us, So now what do we do with this? I think we should have a broad smile and enjoy the conversation. Life is all about this, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बहुत एक्टिव हो गए, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो रहा है, और जो एडमिन होता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। आपने एक ग्रुप बनाया ओनली फॉर मीटिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, एंड अचानक कोई कुछ मिक्स जो अलाउड नहीं है ऐसी कोई चीज डाल देता है ग्रुप के अंदर,
एंड सडनली उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग चालू होता है। बर्थडे विशेस, कभी कभी मैंने देखा है जो बंदा वो ग्रुप में नहीं है उसको सब लोग बर्थडे विश कर रहे हैं, पूरा ग्रुप, और किसको लगता है इसने किया तो मुझे भी करना चाहिए, एंड देन एक पीछे पीछे चली आती। अब कुछ लोग ऐसे, मैं कभी ज्यादा व्हाट्सएप ड्यूरिंग द डे उसके ऊपर नहीं रहता हूँ, लेकिन एक बार ऐसा हो गया ग्रुप के अंदर मैंने देखा किसी का बर्थडे था, मैंने देखा लोग उसको विश कर रहे, और थोड़े टाइम के बाद अचानक किसी की डेथ हो गई, तो कॉन्डोलेंसेस मैसेज स्टार्ट हो गए, लाइन से कॉन्डोलेंसेस चालू हो रहा है, तो आरआईपी 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 ऐसा करके हो रहा है, और मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, और शाम को मुझे बाद में याद आया कि हाँ यार वो रमेश का बर्थडे है और मनीष का कुछ फैमिली में डेथ हो गया है। अब मैंने कुछ ज्यादा चेक बॉक्स में हिस्ट्री नहीं चेक की, और मैंने मनोज को कॉन्डोलेंसेस मैसेज दे दिया और रमेश को बर्थडे विश कर दिया, तो पूरा उल्टा हो गया, और थोड़े टाइम के बाद देखा कि दोनों ने ग्रुप में से लेफ्ट कर दिया। सो ये हमारे आसपास ऐसा होता है, हम लोग, हमारा माइंड अभी कंट्रोल में नहीं है, टेक्नोलॉजी ने रियली टेकन ओवर अस। एंड इफ आई लुक एट रोटरी इज सच अ फैबुलस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास कितने सारे मौके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ रोटरी क्लब्स जो है, हर एक क्लब का अपना कल्चर है, एंड हर एक क्लब का जो प्रेसिडेंट है उसको हम रोटरी प्रेसिडेंट बोलते हैं। अब आप इंटीरियर में चले जाए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में देयर आर क्लब जिसमें 15-20 मेंबर है, एंड देयर आर क्लब्स जिसमें 300 मेंबर है। अब जहाँ पे 15-20 मेंबर का क्लब है वहां पे अटेंडेंस की चैलेंज है, स्पीकर की चैलेंज है, और वहां पे अगर कोई नया मेंबर आके 2 अच्छे प्रोजेक्ट कर लेता है, जैसे धर्मेंद्र आपके क्लब में कर रहा है पिछले 3-4 साल से, इज वेरी एक्टिव, बट नए क्लब में अगर धर्मेंद्र ने पहले साल में 2 प्रोजेक्ट कर देते तो दूसरे साल वो प्रेसिडेंट बन जाता, बिकॉज वहां प्रेसिडेंट ढूंढना पड़ता है, किसी ने अच्छा काम किया तो उसको प्रेसिडेंट बना देते, और जहां पे आपके जैसे सीनियर बड़े क्लब है वहां पे प्रेसिडेंट बनने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। सो दिस इज द कल्चर ऑफ रोटरी। कहने को वो भी रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट है, ये भी रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट है। और जहां तक मैं कल्चर की बात करूं तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे मैं इंटीरियर में जाता हूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, वी हैव क्लब्स अप टू दानो दिस साइड, और ये साइड साउथ मुंबई में भी है। तो मैंने देखा कि जो इंटीरियर्स के जो मेंबर्स है, क्लब है, उनका जो कल्चर है, वहां पे रोटरी को 80% दिल से सोचते हैं, दे आर वेरी इमोशनल पीपल, उनका ईक्यू लेवल बहुत हाई है। और जैसे जैसे हम साउथ मुंबई की तरफ जाते हैं, आप लोग तो एकदम बीच में 50-50 है आपके वहां पे, बट टुवर्ड साउथ मुंबई जब जाता हूँ एक्सट्रीम, तो ताज में जब जाके मैंने मीटिंग अटेंड किया तो वहां पे रोटरी 80% यहाँ से, 20% दिल से। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रोटरी, दो the system and everything is different, same, but the way each club is defined and identifying the projects are completely different. मैं आजकल देखता हूँ कि फ्लावर्स डिसअपियर हो गए। जब मैंने नया नया रोटरी में आया तो मैंने देखा कि हर क्लब के अंदर एजेंडा में सबसे पहले नेशनल मीटिंग कॉल टू ऑर्डर, नेशनल एंथम, उसके बाद फ्लोरल वेलकम। और पता नहीं किसने आइडिया दिया, लेकिन धीरे धीरे फ्लावर जो है वो निकलते गए। और मेरा ऐसा मानना है कि फ्लावर इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू टू शेयर द लव, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने किसी को फ्लावर दे दिया तो कुछ बात करने की जरूरत नहीं। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया, रिसर्च किया कि इसकी इंपॉर्टेंट क्या है। दो हम लोग अभी भी बड़े इवेंट होते हैं, इंस्टॉलेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट असेंबली होता है, तो वहां पे फ्लोरल रिकॉग्निशन होती है। खास करके इंस्टॉलेशन में हर एक क्लब का अपना स्टाइल है इंस्टॉलेशन का। आप देखते हैं इंस्टॉलेशन में बड़ा फंक्शन होता है, क्लब प्रेसिडेंट अपने फैमिली को बुलाते हैं, नेबरिंग क्लब के प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, और खास करके जो प्रीपेड्स में उनका जो ग्रुप बनता है वो प्रेसिडेंट को खास बुलाते हैं। एंड यू हैव अदर ऑर्गेनाइजेशन, रोट्रैक, सीनियर सिटीजन, इनरव्हील, आप कम्युनिटी लीडर्स को बुलाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इंस्टॉलेशन में शुरुआत होती है गवर्नर से, गवर्नर इज चीफ गेस्ट। तो मैंने देखा कि जो जो लोगों को आप फ्लोरल रिकॉग्निशन देते हैं इंस्टॉलेशन में, वो सारे लोग कुर्सी पे चिपक के बैठते हैं, एंड दे आर द मोस्ट अटेंटिव पीपल ड्यूरिंग द एंटायर प्रोग्राम, बिकॉज they got recognition, they got acknowledgement, and I personally believe that recognition is the highest need of a human being. तो ये फ्लावर होना बहुत जरूरी है। आप गवर्नर से स्टार्ट करते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को देते हैं, फिर देन आपके पार्टनर्स आते हैं, फिर आपके मेंबर आते हैं, और खास करके प्रेसिडेंट के जो को प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रीपेड्स में ग्रुप हुआ होता है,
Dharmesh will say ki, all the way, my friend, colleague president, we had a great time at Prepaids, all the way coming from Dahanu. अब जो बंदा दानों से इंस्टॉलेशन के लिए जुहू पे आ रहा है, उसको 1.5-2 घंटे का टाइम लगता है, बारिश का टाइम रहता है, और जब इतने सारे लोगों के बीच में उसका नाम पुकारा जाता है और उसको जब फ्लावर मिलता है ना, वो बंदा एक 30 सेकंड के अंदर उसकी पूरी थकान निकल जाती है ट्रैवलिंग। सो दैट इज द पावर ऑफ फ्लावर। लेकिन आप ये सोचो कि जब इतने सारे ऑडियंस के अंदर हर टाइम हर इंस्टॉलेशन में ऐसा एक गुफक होता है कि कोई इंपोर्टेंट आदमी को आप फ्लावर देना भूल जाते हैं, तो उसको क्या होता है? एक बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट की बात है। दिस इज आई एम शेयरिंग एक्चुअल इंसिडेंट्स। आई वाज द छोटा मोटा चेयरमैन इन द डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर उल्लास कोलटकर वाज द गवर्नर, और बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट का इंस्टॉलेशन था। शशि शर्मा वाज द चीफ कोऑर्डिनेटर, और हम लोग जल्दी पहुंचे। शशि शर्मा, मैं, उल्लास, हम लोग इनकमिंग प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, एंड देन इंस्टॉलेशन स्टार्टेड। अब इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि इंटरवल के पहले और इंटरवल के बाद, इंटरवल के पहले आउटगोइंग प्रेसिडेंट स्पीक्स, और पूरा फोकस जो है ऑडियंस का वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट के ऊपर रहता है। मतलब उसके लिए लास्ट मीटिंग है, वो सबको एक्नॉलेज करता है, रिकॉग्नाइज करता है उसने क्या किया पूरे साल में, उसके बारे में बात करता है, एंड ही इज कंप्लीटली थ्रिल्ड। इसको उसका इतना बड़ा मौका वापस लाइफ में नहीं मिलने वाला। देन ही विल बिकम इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट। और उसके बाद इंस्टॉलेशन होता है, एंड देन इनकमिंग प्रेसिडेंट अनवील हिज प्लान। आई लव द इंस्टॉलेशन। मैंने कुछ अभी तक 25 साल में 550 इंस्टॉलेशन अटेंड किए, तो इंस्टॉलेशन के ऊपर ही मैं पूरा एक सेशन ले सकता हूँ। तो ये होता है कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट मीटिंग स्टार्ट करता है, इसलिए जो फ्लोरल वेलकम है वो उसके टाइम पे होता है। अब प्रोग्राम चालू हुआ, उल्लास कोलटकर इज ऑन डायस, मैं और शशि शर्मा बाजू बाजू में फ्रंट रो में बैठे। मास्टर ऑफ सेरेमनी ने सारे लोगों को रिकॉग्नाइज किया, मुझे भी फ्लावर मिल गया, और गलती से शशि शर्मा को फ्लावर नहीं मिला। अभी आप सोचो, चीफ कोऑर्डिनेटर को अगर फ्लावर नहीं मिलता है रोटरी में, अब नॉन रोटेरियन को समझ में नहीं आएगा, लेकिन रोटेरियंस के साथ जो डिस्ट्रिक्ट में जाते तो ईगो बहुत आ जाता है। अब वो अनकंफर्टेबल हो गया, वो ऐसा ऐसा पांव करके बैठ रहा है, अब मुझे पता चल गया इसको फ्लावर नहीं मिला है, तो मैंने शशि को बोला, यार शशि तेरे को फ्लावर नहीं दिया यार। अब ये कैसा है ना, हमारे घर में अचानक रात को बिजली चली जाती है 12 बजे, तो हम सबसे पहले पत्नी बोलती है जरा कर्टेन हटा के देखो कि बिल्डिंग में सबकी लाइट गई क्या। तो उसका हाल भी ऐसा ही हो गया, पूरे गांव को फ्लावर मिला। अच्छा, उसको नहीं मिला वो उसको ही मालूम था, बट मैंने जब पूछ लिया तो मुझे मालूम पड़ गया, तो अभी उसको और प्रॉब्लम हो गया। और जिसको फ्लावर नहीं मिलता है ना, उसका लिसनिंग बंद हो जाता है, ही डजंट लिसन, वो उसका इंटरनल डायलॉग चालू होता है। अरे मैं इतना जल्दी आया, पहले आके मिला, मैं सामने बैठा हूँ फ्रंट रो में, Why is he not looking at president? उसको मालूम नहीं चीफ कोऑर्डिनेटर को फ्लावर नहीं दिया, उसका इंटरनल डायलॉग चल रहा है। तो मैंने फिर एक चिट्ठी भेज के प्रेसिडेंट को भेजा कि यू मिस द चीफ कोऑर्डिनेटर, एंड बिलीव मी, जैसा वो प्रेसिडेंट ने बीच में से माइक लेके उसको फ्लोरल रिकॉग्निशन किया, उसने बोला एक्सट्रीमली सॉरी सर, आवर चीफ कोऑर्डिनेटर, इट वाज आवर सिंसियर अपोलॉजी, ऐसा करके उसको फ्लावर दिया। और जैसा शशि शर्मा को फ्लावर मिला है, ऐसा पलांटी मार के वोट ऑफ थैंक्स तक ऐसा ही चुपचाप बैठ के उसने पूरा इंस्टॉलेशन सुना। So this is a power of floral welcome, and I think it is very, very important that we continue this, recognition through flower. छोटी एक बात ले लेता हूँ, आपके क्लब के कुछ मेंबर है, कुछ इंसिडेंट्स उनके साथ में भी है। असलम, when Aslam was a convener for Praful Sharma's district assembly, I was a sergeant, और बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट असेंबली हुआ था। आपका पूरा क्लब का जो मैंने टीम देखा, यू डिड अ फैबुलस जॉब इन दैट डिस्ट्रिक्ट असेंबली एट ताज लैंडसेन। तो क्या होता है, कन्वीनर आईपीपी होने के बाद इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी क्लब और इतना बड़ा इवेंट, असलम केम, आई वाज इन ऑडियंस एज ए सर्जेंट, एंड आई ऑलवेज ऑब्जर्व दिस, और फ्रंट रो के अंदर सारे पास गवर्नर बैठे अपनी अपनी वाइफ के साथ। असलम ने ऑलमोस्ट प्रिपेयर किया था अटेंडेंस के हिसाब से, बट व्हेन ही स्टार्टेड recognizing and welcoming the audience, he started taking names of past governors, बंसी एंड सुरेखा, भरत एंड माधवी, और आते आते लाइन में उसके बाद में उन्होंने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है,
वो पेपर में पढ़ने का बंद कर दिया और सामने फेस देख के उनका नाम देते थे, अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है। सो चलते चलते आया तो राजू सुब्रमण्यम बोलते हैं, तो उसका फ्लुएंटली निकल गया राजू सुब्रमण्यम, और उसके बाजू में विद्या नहीं थी, विद्या पीछे बैठी थी, लेकिन लता सुब्रायडू वाज सिटिंग एंड असलम सेड पास गवर्नर राजू सुब्रमण्यम एंड लता सुब्रमण्यम, एंड वी हैड अ ब्लास्ट इन द ऑडियंस। से आप देखो ना रोटरी में कितनी छोटी छोटी बातें होती है और कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको हंसने के लिए। राजू कितना खुश हो गया था तभी, अरे राजू कितना खुश हो गया तभी, पता नहीं है। so happy। तो बहुत सारी ऐसी बातें, मैं अलग अलग चीज लेता हूँ, कुछ इंसिडेंट्स एक्चुअल हुए, कुछ इंसिडेंट्स मैंने क्रिएट किए। और गवर्नर जब नॉमिनी होता है गवर्नर, उसके एक दिन पहले जब रिजल्ट नहीं आया, उसकी मनोस्थिति आप देखो। मैंने गवर्नर्स को बहुत नजदीक से देखा है। तो गवर्नर जब नॉमिनी नहीं होता है और इलेक्शन की प्रोसेस चालू है, तभी वो जब दूसरे क्लब में जाके मेंबर को मिलता है तो उसका एटीट्यूड और बात करने का तरीका बहुत अलग होता है। वो इंडिविजुअल मेंबर को भी जाके मिलते हैं एंड दे आस्क देयर मेंबर, आपको क्या लगता है रोटरी में क्या बदलाव लाना चाहिए। वो पूछते सबको है, लेकिन फिर एक बार कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना, बाद में अपनी मनमानी नहीं करते। वो दूसरे मेंबर ने जो बोला वो फिर निकल जाता है उसमें। और जैसे नॉमिनी होते हैं ना, तो उसके बाद उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, प्रिपरेशन चालू हो जाता है। अभी जैसे ताजे आप देखेंगे तो संदीप अग्रवाल है, तो ही हैज इनफ टाइम, तो ही विल ऑब्जर्व सो मेनी थिंग, ओसीवी कैसे हो रही है, कैसे गवर्नर बात कर रहे हैं। तो एक बार उल्लास कोलटकर, जब गवर्नर उनका साल शुरू हो गया था और राजू सुब्रमण्यम बिकेम द गवर्नर नॉमिनी, तो हम लोग एक प्रोग्राम में खड़े थे। दिस वाज मे बी इन अराउंड जनवरी फरवरी। अब राजू को क्यूरियोसिटी थी कि ओसीवी कैसी चल रही है, मैं पूछूं उसको, उल्लास को, ताकि थोड़ा आइडिया मिलता है ना। आप गवर्नर बन तो जाते हैं, लेकिन बहुत काम करना पड़ता है, ओसीवी और इंस्टॉलेशन का प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा वो उल्लास को कि क्या उल्लास कैसा चल रहा है। अब उल्लास बेचारा एकदम सीधा सिंपल आदमी है। उल्लास बोला राजू ठीक चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। बोले ओसीवी हाँ ठीक चल रहा है, बोलता है अच्छा है, बट बोलता है एक प्रॉब्लम आ रहा है राजू यार, आई नीड योर एडवाइस। तो राजू ने बोला क्या हो गया। बोले देखो मैं जब से गवर्नर बना, फिर अपना इंट्रोडक्शन सब जगह पे होता है, इंसुलेशन में होता है, हर एक प्लेटफॉर्म पे होता है। तो अभी सारे रोटेरियंस को डिस्ट्रिक्ट में ये पता है कि आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आई हैड अ नर्सिंग होम इन डोंबिवली, मैंने 25-30 बुक लिखे है, एंड आई एम वेरी वेरी फेमस डॉक्टर फॉर द चिल्ड्रन। तो बोले हाँ तो अच्छी बात है ना। बोले नहीं, अभी क्या होता है, मैं ओसीवी में जा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत आ रही है। बोले क्या होता है। बोले देखो ओसीवी में रेगुलर मीटिंग के पहले क्लोज डोर मीटिंग होता है। अब क्लोज डोर में क्या है कि आप पार्टनर्स इन सर्विस की कमेटी को बुलाते हो, इनरविल है, आपका सीनियर सिटीजन है, रोट्रैक्टर है, इंटरेक्टर को बुलाते हो बात करने के लिए, टू इंटरेक्ट विद गवर्नर। तो बोले हाँ वो तो सब क्लब में होता है। बोले वो प्रॉब्लम नहीं है। बोलते अभी क्या हो रहा है, कुछ क्लब में 4-5 क्लब में ऐसा हो गया कि मैं गया और इनरविल क्लब का जब भी इंटरेक्शन था तो कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेके आ गई। बोले अरे डॉक्टर साहब आप आने वाले थे, हमको पता था, ये देखो ना मेरे बच्चे को 3 दिन से बुखार है, या उसका ये प्रॉब्लम है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, हमने इतने डॉक्टर को दिखाया है। तो उधर वो जरा एम्बेरेसिंग फील होता है। फिर उधर ही मेरे को सबके सामने बच्चे को चेक करना पड़ता है। कुछ महिलाएं बोलते हैं रिपोर्ट लेके आ जाती है। बोले ये देखो ना 1 महीने से इसका रिपोर्ट निकाला है, कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने सोचा आप आ जा रहे तो मैं रिपोर्ट लेके आ गई। तो राजू राजू का नेचर कैसा है। राजू बोला उल्लास दिस इज नॉट गुड यार। बोलते हैं फिर क्या करूं। आई नेवर मिक्स बिजनेस विथ रोटरी। कभी मिक्स मत करो बोलते हैं। तो बोलते हैं क्या करो, लेकिन बोले एक काम करो, तुम्हारे पास तो रोस्टर है, तुमको मालूम है कौन सी क्लब में हुआ है, और अभी तुम्हारा और 22-25 ओसीवी बाकी है। बोले तुम सबको है ना बिल भेज दो कंसल्टिंग का प्रेसिडेंट को। तो उल्लास बोलता है यार प्रेसिडेंट को कैसे बिल। बोले नहीं भेजेगा तो आगे तुमको वापिस ये प्रॉब्लम आएगा। एक बार क्लब को मालूम पड़ जाएगा कि उल्लास ने ऐसा कंसल्टिंग का बिल भेजा तो वो लोग आगे तुमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट इज माई एडवाइस। बोलता है उल्लास तो सीधा आदमी है बेचारा, तो रात को उसको नींद नहीं आया और बहुत सोचा उसने। सुबह में गया हॉस्पिटल में और उसकी असिस्टेंट को बुलाया कैबिन में, और वो रोस्टर लेके बैठे दोनों। बोले हाँ ये क्लब में था, अपने को इनको कंसल्टिंग का बिल भेजना। ये दोनों डिस्कस कर रहे, उतने में उसका प्यून अंदर आ गया नॉक करके और एक कुरियर लेके आया।
उल्लास ने कुरियर खोला तो उसमें राजू सुब्रमण्यम का बिल था। सो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है हमारे आसपास, यू नो। दूसरा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम कमिंग फ्रॉम गुजरात, मेरा एजुकेशन भी पूरा गुजराती में हुआ है, and why I owe a lot of things to Rotary is my communication skill. You know, हमारे उस टाइम पे when I did my graduation, हमारे कॉलेज में कोई इंग्लिश में बात नहीं करता था। यहाँ तक कि हमारे कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर है, वो भी इंग्लिश गुजराती में सिखाते थे। मतलब इतना पैथेटिक था इंग्लिश का लेवल। तो मैं जब मुंबई में आया तो आई वाज नॉट एबल टू स्पीक 2 सेंटेंस इन इंग्लिश, मतलब एक साथ में मैं 2 सेंटेंस इंग्लिश में करेक्ट नहीं बोल सकता था। थैंक्स टू रोटरी अभी आज जो मैं बात कर सकता हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रोटरी। आई हैव नॉट डन एनी प्रोफेशनल कोर्स एनीवेयर, बट लैंग्वेज का अपना एक स्टाइल है। गुजराती इंग्लिश बोलता है तो तुरंत समझ में आता है, और वो लैंग्वेज की वजह से कहाँ से ह्यूमर आता है। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई बॉम्बे नॉर्थ आइलैंड में पास्ट प्रेसिडेंट आर सिंह है। यू नो, हर साल गवर्नर आता है तो कुछ नया चेंज करता है इंस्टॉलेशन के अंदर। पहले ग्रुप कोऑर्डिनेटर था, फिर जीजीआर आया, कुछ ना कुछ होता है, इंट्रोडक्शन ये करेगा वो करेगा, और गवर्नर से गाइडलाइन आता है। रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे कांदीवली का इंस्टॉलेशन, राजू सुब्रमण्यम वाज गवर्नर, आई वाज डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सिटिंग ऑन द फ्रंट, और असिस्टेंट गवर्नर वाज विनय व्यास फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली। अब वो भी एडवोकेट, राजू सुब्रमण्यम इज आल्सो एडवोकेट। आर सिंह वाज अ ग्रुप कोऑर्डिनेटर. So he was supposed to introduce assistant governor, and assistant governor will introduce district governor. This was the sequence. R Singh ने अपना style चालू किया, very senior Rotarian, उसको invite किया, and he started like this. He's from UP. So he said, "Good evening, friends. First, I would like to compliment outgoing president for a wonderful year he had, and my best wishes to incoming president for a fantastic year ahead. And now it's my proud privilege to introduce you the assistant governor for this club, Mr. Rotarian Vinay Vyas, who is a junior lawyer." ऐसा करके उसने पॉज लिया है। Mr. Vinay has done his BA LLB and blah blah blah, and has been practicing as a lawyer for last 15 years. And he has been awarded twice as the best lawyer in the western zone of Mumbai. और पहले सब लोग इधर उधर देख रहे, फिर देखा कि बंदा इसको बोलता ही ऐसा है। एंड फाइनली जब कंक्लूड कर रहा था तो बोलता है, फ्रेंड, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू प्रेजेंट बिफोर यू एन एमिनेंट रोटेरियन एंड अ ग्रेट लायर, रोटेरियन विनय व्यास, एंड आई विल इन टर्न रिक्वेस्ट हिम टू लेटर इंट्रोड्यूस अ बिगर लायर हु इज आवर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर. So humor हमारे आसपास ही एक्चुअली, it is all up to us how we are looking at it. मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि रोटरी अगर आपको समझना है, रोटरी इज अ वंडरफुल वेरी वास्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी जिंदगी में जो चीज चाहते हो ना, वो सब चीज रोटरी से मिलती है आपको। और मैं ये चीज दावे से कह सकता हूँ कि आप जितना जल्दी आपकी उम्र के अंदर अर्ली जितना भी रोटरी ज्वाइन करेंगे, उतना एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी। द वे यू लुक एट लाइफ विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी नाउ। सो मैं हमेशा कहता हूँ, रोटरी आपको पूरी समझ में नहीं आएगी जब तक आप रोटरी के प्रेसिडेंट नहीं बनते। और यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अगर 30 साल से रोटरी में, 40 साल से रोटरी में, भले आप रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट के मेंबर है, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे के मेंबर है, लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट नहीं बने तो आपको रोटरी पूरी समझ में नहीं आएगी। फॉर मी, leadership in Rotary is a club leadership. Please understand. As a club leader, I got transformed in 1 year. I was completely a different person. I think Rotary gives you that opportunity to find your limit as an individual, as a professional, as a human being. वो पूरा आपका मतलब नक्शा बदल देगी, the way you were before you started president. So I want to give you a very actual example, what happened with the presidency. एक बंदा प्रेसिडेंट बनता है तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है। बहुत सारे क्लब में हम देखते हैं आजकल प्रेसिडेंटशिप का बहुत चैलेंज है, प्रेसिडेंट कोई मिलता नहीं। और मैं यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, और अगर आप प्रेसिडेंट नहीं है तो आज आप अपने आप को ये कमिटमेंट दे दो, आप जितना जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, यू शुड बिकम द प्रेसिडेंट। एंड आई गारंटी यू, वंस यू कंप्लीट योर प्रेसिडेंटशिप, यू विल रिमेंबर मी।
कि व्हाट अ ग्रेट गिफ्ट यू आर गिविंग टू योरसेल्फ, यू नो। लाइफ एक ही है और कितनी है हमको नहीं मालूम है, तो नेवर पोस्टपोन, यू नो। हम लोग कभी कभी काफी चीजें लाइफ में पोस्टपोन करते हैं, अरे बाद में करता हूँ, टाइम नहीं है। आई थिंक इफ यू आर गिविंग एक्सक्यूज, यू आर मेकिंग फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। कुछ क्लब ऐसी है जहां पे लास्ट मोमेंट पे हर साल, हमारे कुछ 100 के ऊपर क्लब है, 8 से 10 क्लब ऐसे होते हैं जहां पे लास्ट मोमेंट में प्रेसिडेंट कैंसिल होता है या चेंज होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है क्लब में। और बड़ी क्लब होती है जो सीनियर क्लब है, जिसकी 25-30 साल हो गए, वो क्लब में जब प्रेसिडेंट लास्ट मोमेंट में गड़बड़ होती है, तभी पास्ट प्रेसिडेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। मैं बात कर रहा हूँ ईयर 2000 के आसपास, 20 साल पहले की बात है, और उस जमाने में ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउ था। Why I am saying this? Now this was a club, very senior club, और अचानक प्रीपेड्स के पहले क्लब प्रेसिडेंट का कुछ पंगा हो गया क्लब में, और उसने बोला मैं रिजाइन करता हूं। तो सारे पास्ट प्रेसिडेंट का मीटिंग हुआ और रोस्टर लेके बैठे, और एक एक का नाम दिया जा रहा है कि अच्छा ये रमणीक भाई, तो दूसरा पास्ट प्रेसिडेंट बोलता है अरे रमणीक भाई का तो ऐसे ड्यू टाइम पे नहीं आता है, उसका प्रेसिडेंट कैसे बना सकते हैं। एक एक करके किसी ने कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किया है, किसी ने सेक्रेटरीशिप नहीं किया है, करते करते एक नाम आया रमेश भाई परमार। बोले अरे अच्छा है, ये बंदा 10 साल से रोटरी में है, भले वो बोर्ड में कम आया, 2 ही बार आया, लेकिन सेक्रेटरी नहीं बना है, लेकिन वो बंदा है ना, सिंपल है, वो फेलोशिप में आता है, फाउंडेशन को देता है, फंड रेजिंग होगा तो कुछ भी करता है, स्पीकर आता है तो उसको एक्सटेंडेड पार्टी वो हर टाइम वही लेके जाता है। और सबसे बड़ी बात है उसका किसी के साथ पंगा नहीं है। तो सब पास्ट प्रेसिडेंट बोले ठीक है, एंड देन पास्ट प्रेसिडेंट डिसाइड करके रमेश भाई के घर पे पहुंच गए। तो अभी रमेश भाई का कैसा था, 10 साल से रोटरी में था, बट व्हाट वाज हिज एटीट्यूड? रेगुलर मीटिंग में जाते थे, उसने कभी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस वहां पे नहीं गए, अपनी क्लब में रहे, उसके लिए अपना क्लब में जो होता है वो रोटरी। एक्सटेंडेड में हमेशा जाते थे, उसको ड्रिंक का बहुत शौक था, आई थिंक उसकी वजह से वो रोटरी में था। एक्सटेंडेड में जाएंगे, 3-4 बैग मारेंगे और सेल्फ ड्राइव करके घर पे आता था बंदा। तो बुधवार का मीटिंग रात को 12 बज जाता था उसको, 12 बजे सेल्फ ड्राइव करके 4 पैग अंदर है रमेश भाई को, और बिल्डिंग के गेट पे आता था, गेट बंद होता था तो जोर जोर से हॉर्न मारता था, आजू बाजू वाले को पता चलता था कि आज बुधवार है और रमेश भाई का गाड़ी आया है, यू नो, दैट वाज हिज, उसका ब्रांड बन गया था। बट ही वाज इन रोटरी, तो दिस वाज हिज एटीट्यूड। और वॉचमैन भागते भागते आके गेट खोलता था तो उसके ऊपर बरस पड़ता था, ग्लास नीचे करके गाली देता था उसको, किधर घूम रहा है, वो बोलता साहब पानी भरा है, काय का पानी, बोलता है आधे घंटे से कर रहा हूं। एक्चुअली 3 ही मिनट हुआ है, लेकिन 4 पैक पीने के बाद 3 मिनट आधा घंटा दिखता है, आपका टाइम बढ़ जाता है। लिफ्ट में जाता था ये बंदा, रमेश भाई रेगुलर जब भी रोटरी में था, तो लिफ्ट में हम देखते एक स्टूल पे बंदा बैठा रहता है मिड एज, उसको भी उठाता था, बोलता है स्टूल काय को रखा है, बाहर निकालो, 2 आदमी का लिफ्ट में जगह रोकता है, बोलता है तुमको मालूम है इलेक्ट्रिक का बिल कितना है, बम्बई में स्क्वायर फीट का भाव कितना है, उसके ऊपर भी बरस पड़ता था। दो ही वजह ना रोटरी। पत्नी ने उसको पूछ लिया रमेश भाई को कि उसकी भाई की लड़की को स्कूल में एडमिशन के लिए 5,000 रुपया डोनेशन चाहिए, तो उसके ऊपर भी बरस पड़ता था। बोले कितना टाइम हो गया भाई को, बोले 3 महीना, बोले 5,000 रुपये दिया और भाग गई। तो दो ही वॉज इन रोटरी, दिस वॉज इज एटीट्यूड ऑफ रमेश भाई। अब ये बंदे को पास्ट प्रेसिडेंट ने उसके घर पे जाके समझा कि देखो रमेश भाई अपने क्लब में क्राइसिस है, आपको प्रेसिडेंट बनना है। तो सबसे पहले तो बोला भाई मेरे को इंग्लिश बोलने को नहीं आता है, आपको कुछ पैसा मांगता है मैं डोनेशन दे दूंगा, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो सबने पूछा, एक हमारे उन्नी कृष्णन जैसा साउथ इंडियन बंदा, उसको पूछा लॉजिस्टिक वाला, बोले क्या प्रॉब्लम, बोले यार वो इंग्लिश में लेटर लिखना, बात करना, बोले यू डोंट वरी, आई विल बिकम योर सेक्रेटरी, ऑल कम्युनिकेशन आई विल टेक केयर, आप खाली वेडनेसडे को आओ, मीटिंग कॉल टू ऑर्डर करो, कॉलर पहन के, बाकी सब मैं संभालूंगा। तो सब प्रेसिडेंट ने थोड़ा हौसला दिया, बोले देखो हिस्ट्री में आपका नाम आएगा, हमारा रोटरी सेंटर में बोर्ड है, उस पर आपका नाम परमानेंट हो जाएगा, आपको इतना बड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा। और उसकी वाइफ को बोलते हैं यू विल बी द फर्स्ट लेडी, देखो आपको इतने बड़े बड़े प्रोग्राम में इतने सारे लोग कितने रिस्पेक्ट से बुलाएंगे। पत्नी ने भी रमेश भाई को थोड़ा पुश किया कि चलो बन जाओ, एंड रमेश भाई एग्री हो गया। फाइनली ही वाज सेंट टू प्रीपेड्स। अब प्रीपेड्स जितने भी लोग यहाँ पे है, ज्यादा करके लोग गए, प्रीपेड्स इज वन ऑफ द मोस्ट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू whoever have attended। हमारे वहां ज्यादा करके साज रिसोर्ट में होता है। साज का बात आए तो बीच में एक बात ले लेता हूँ। 2-3 साल पहले मैं रोटरी क्लब बॉम्बे एयरपोर्ट में खट्टी मीठी बातें करने गया, बंसी बैठा था, राहुल बैठा था सामने फ्रंट रो में,
और उसी टाइम डिस्ट्रिक्ट असेंबली में एक नया रोटेरियन ने आके मुझे पूछा, नया मतलब 3-4 साल रोटरी में हो गया, बोले यार विनोद भाई आप इतने साल से रोटरी में हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं। मैं बोला क्या? बोले अरे मैंने सुना है रोटरी में पॉलिटिक्स है और 3-4 ग्रुप है ऐसा। मैं बोला हाँ है, वो तो सब जगह पे जहाँ इंसान है वहां पे पॉलिटिक्स तो होता है, अपनी फैमिली में भी पॉलिटिक्स होता है, उसमें क्या हो गया? बोले नहीं लेकिन अभी ये जो गवर्नर खड़े रहते हैं उसमें कौन से ग्रुप का गवर्नर चुन के है वो कैसा मालूम पड़ेगा हमारे जैसे रोटेरियन को? तो मैं बोला सिंपल है। बोला क्या सिंपल है? मैं बोला आपको ये चेक करना है कि उसका प्रीपेड कहाँ पे हो रहा है। तो राहुल एकदम खुशी से मारे पागल हो गया। बोलता है सही है। मैं बोला देखो एक ग्रुप है जिसका साज में होता है, एक का सिलवासा में होता है, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है, किधर जयपुर में जाके करता है, कोई पुणे में जाके करता है। तो दिस इज हाउ इट हैपन। बट प्रीपेड इज अ फेबुलस थिंग। साज में रमेश भाई गए वहां पे 100 से ज्यादा प्रेसिडेंट उनकी फैमिली के साथ में, रमेश भाई को इतने सारे लोगों को देख के अलग अलग लोकेशन से। और प्रीपेड्स में क्या होता है, 3 दिन आपका फेलोशिप है, नाइट में इवेंट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, एंड देन यू हैव सेशन ऑन मेंबरशिप, रोटरी फाउंडेशन, कम्युनिटी सर्विस, वोकेशनल सर्विस, इंटरनेशनल सर्विस, ग्रुप स्टडी एक्सचेंज, पीस स्कॉलर, आपका वाटर मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, टीम बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्किल। और रमेश भाई का माथा पूरा भारी हो गया 3 दिन के अंदर। बोले ये रोटरी है, क्योंकि उसके लिए उसका क्लब ही रोटरी था। एंड ग्रुप डिस्कशन में प्रोजेक्ट के ऊपर देखा उसने कि रोटरी क्या कर रही है, पोलियो के बारे में सुना उसने कि इतना पैसा रोटरी ने पोलियो के लिए दिया है। एंड दिस गाय वाज कंप्लीटली टेकन अवे। और जब वहां से लौट के रमेश भाई वापस आया तो ही वाज कंप्लीटली अ न्यू पर्सन, न्यू रोटेरियन। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है। प्रीपेड्स में जाने के बाद यही रमेश भाई वापस रेगुलर मीटिंग में जा रहा है। वही रेगुलर मीटिंग एक्सटेंडेड में गया स्पीकर को लेके, वही 4 पैग मारा, वही खुद का गाड़ी रात को 12 बजे सेल्फ ड्राइव करके वापस बिल्डिंग में जा रहा है। बिल्डिंग का गेट बंद है, रमेश भाई हॉर्न मारने को जा रहा है, अचानक रुक जाता है, प्रेसिडेंट बन गया। वहां पे उसने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सेशन सुना था, नो हॉर्किंग बोलता है। एकदम चुपचाप बैठ गया। वो लाइट से ऐसा डीपर मार रहा है बिल्डिंग के अंदर ताकि वॉचमैन को पता चले कि गाड़ी खड़ी है बाहर। वन ऑफ द मोस्ट 2 इम्पोर्टेंट वैल्यू आप सीखेंगे प्रेसिडेंटशिप के अंदर, वन इज टॉलरेंस and second is patience. And I think these 2 values are one of the most important values for a human being. अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये 2 वैल्यू होना बहुत जरूरी है। ये बंदा आराम से एकदम पेशेंट होके ऑन बोर्ड नहीं मारा है, शांति से बैठा है। थोड़े टाइम के बाद वॉचमैन ने लाइट देखा, भागते भागते आया, गेट खोला, उसको लगा आज तो मर गए। रमेश भाई ने हॉर्न भी नहीं मारा है। अब कोई आदमी थोड़ा जो एक्सपेक्टेड है ऐसे बिहेवियर से चेंज होता है तो सामने वाले को टेंशन होती है। वॉचमैन टेंशन में, गेट खुला, रमेश भाई ने बिना ग्लास उतारे अपना गाड़ी लेके पीछे जाके पार्किंग लॉट में रखी। तो वॉचमैन टेंशन में हो गया, बोले ग्लास भी नहीं उतारा, कुछ बोला भी नहीं, गुस्सा भी नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। गेट बंद करके वो एंट्रेंस लॉबी की तरफ आया वॉचमैन, और वहां से सामने से रमेश भाई गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। और इसको डर लगा कि आज तो गाली नहीं देंगे लेकिन सीधा हाथ ही उठाने वाला है। वो डर के मारे ऐसे आ रहे हैं और रमेश भाई उसके नजदीक आए। वो उसको लगा हाथ उठाए, रमेश भाई ने हाथ उठाया लेकिन मारने के नहीं, लेकिन उसके कंधे पे रख दिया और उसको एकदम शांति हो गई। बोले ये क्या हो गया? उसको बोलता है राम सिंह क्या कर रहे हो? राम सिंह हैरान, बोले रमेश भाई में इतना बदलाव कैसे आया? बोले साहब पानी चलाने को गया था। अब देखो उसने वहां पे वाटर मैनेजमेंट का मनु पटेल का 20 मिनट का लेक्चर सुन लिया। अब रमेश भाई उसमें से जो उसको याद रहा ये राम सिंह को बोल रहा है। बोले राम सिंह तुमको मालूम नहीं दुनिया में कितनी तरह का पानी है, पीने लायक पानी कितना है, इंडस्ट्रियल वाटर कितना है, और यहां तक कि बोलता है 3rd वर्ल्ड वॉर अगर होगा ना तो पानी की वजह से होने वाला है। और तुम कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, पानी बचा रहे हो तुम। मैं तो बोलता हूं अगर रोटरी में किसी को सर्विस अब वो सेल्फ अवार्ड देना चाहिए तो तुमको देना चाहिए। वो वॉचमैन भी होता है, चलो गाली नहीं देने से आज कुछ अलग बात कर रहा है। सो दिस वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन रमेश भाई। दूसरे दिन रमेश भाई लिफ्ट में जा रहे हैं, दोपहर में खाना खाने को आए घर पे, देखा कि वो स्टूल बाहर पड़ा है। अब वो लिफ्ट में मिड एज रहता है, उसको पूछता है कि क्यों भाई स्टूल किधर है? बोले साहब आपने तो बोला था स्टूल बाहर रखने को। बोले देखो यार जब भी पिकअप टाइम रहता है ना, मॉर्निंग का 1 घंटा लोग काम के लिए जाते हैं, शाम को आते हैं, वो टाइम पे बाहर रखने। पूरे दिन तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। तुम्हारा उम्र कितना है? बोलता है साहब 62। बोले देखो पूरा दिन ऐसे खड़े रहोगे ना
तो तुमको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अभी उधर उसने ऑस्टियोपोरोसिस का डॉक्टर सोने जी का लेक्चर सुन लिया था। बोले स्टूल अंदर रखने का पूरे दिन में। फिर उसको पूछता है बच्चे कितने हैं, तो बोले साहब 3 बच्चे हैं। बोले देखो 5 साल के नीचे का बच्चा होगा ना तो 28 सितंबर को पोलियो का टीका लगाना मत भूलना। ये रमेश भाई, उसको पता नहीं था रोटरी क्या है, उसको पता नहीं था पोलियो क्या है। और फाइनली जब वाइफ ने उसको पूछा, वाइफ ने देखा कुछ चेंज हो गया है प्रीपेड्स में आने के बाद, बोले यार वो तुम भाई की लड़की को कौन सी स्कूल में दाखिला करा रहे? बोले अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, ये लो 15,000 रुपया, और उसकी लड़की का पूरा लाइफ लॉन्ग जो भी स्कूल का एजुकेशन का जो भी फी है ना, वो आई विल स्पॉन्सर होता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन यू बिकम प्रेसिडेंट। आपका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है। और मैं आई वांट टू शेयर समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी पर्सनल। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है? सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है? तो आप किसी को नड़ो मत, मतलब तमें कोई ने नड़ो नहीं। यू डोंट बी ऑब्स्टेकल टू समबडी। जो अच्छा काम कोई आदमी कर रहा है ना, उसके बीच में मत आओ। और मेरे लिए मैं आज जो भी हूँ, रोटरी में मैंने जितना भी टाइम दिया है, थैंक्स टू माय वाइफ। बिकॉज वो गांव से आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 14, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 9th स्टैंडर्ड। हमारे फैमिली में उस टाइम पे ऐसा होता था। तो उसको इंग्लिश नहीं आती ज्यादा, तो रोटरी में ज्यादा एक्टिव नहीं हुई। दो she sent my daughter as a youth exchange student in 2005. She loves Rotary, but वो मीटिंग में आके सुन नहीं सकती इंग्लिश में। लेकिन उसने मुझे 25 साल में रोटरी के कोई प्रोजेक्ट के लिए या कहाँ पे भी जाने के लिए, इतनी जगह पे मैं गया। टुडे इज योर 203rd एपिसोड। हम तो अभी ऑनलाइन है, लेकिन मैं अलग अलग सिटी में गया हूँ इंडिया के। बट शी हैज ऑलवेज गिवन फ्री हैंड, सो दैट फ्रीडम, सो आई गिव दैट क्रेडिट टू हर, बिकॉज her contribution is bigger in my making whatever I am doing in Rotary. So I want all of you to please acknowledge my wife Meena. Thank you very much. और उसका मोटिवेशन भी बहुत मिलता है। हम लोग प्रीपेड्स में एक बार दोनों बच्चों को लेके गया था मैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन पैराग्लाइडिंग। तो हमने टेबल टॉप पे पैराग्लाइडिंग के लिए गए हम लोग, और सब लोग कर रहे थे, बच्चे भी कर रहे थे। मैंने भी, वाइफ ने मेरा भी पैसा भर दिया, और मैं जाके एकदम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में वो जो उसकी नेट वगैरह है वो बांध के सीधा भागने लगा। और जैसे भागने लगा तो इट वाज नॉट प्रॉपर, तो मैं एकदम स्किट होके लंबा हो गया, और मुझे पाँव पे पूरा छिल गया और डर गया मैं बोला यार ये तो डेंजरस है। तो एक ऐसा होता है ना, हम लोग सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं ना, तो ही सो परफेक्ट, ही मेक्स इट सो सिंपल। तो हमको लगता है क्रिकेट में कुछ नहीं है, बट हम जब जाके खड़े रहेंगे तो अपने समझ में आता है कितना डिफिकल्ट है। सेम थिंग हैपेंड विद मी। तो मैं डर के वापस आ गया, मैं बोला नहीं करना यार। तो उसका जो कोच था उसने आके बोला, इंस्ट्रक्टर बोले भाई साहब आप ऐसे भागो मत, इसका सिस्टम है, आप प्रॉपर फॉलो करो, अच्छी तरह से होगा। तो मैंने वापस, उसने बराबर फिट किया मुझे, एंड लेकिन वो डर था, गिरा था उसका। वापस मैंने कोशिश किया और थोड़ा ऊपर जाके वापस गिर गया। गिरा तो अभी मैं टेंशन में आ गया, मैं बोला यार ये तो अननेसेसरी काम पे लग जाए। तो मैं खुल के वापस, मैं बोला नहीं करना है। भाई बोले क्या हो गया? मैं बोला नहीं, छोड़ दो उसको। अरे बोले देखो वो बच्चा कर रहा है, ये सीनियर सिटीजन कर रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम, थोड़ा दिमाग ठंडा रख के करो ना। मैं बोला नहीं, जाने दो यार, अननेसेसरी रिस्क है। बोले रिस्क क्या है? रिस्क के बिना कुछ होता है क्या लाइफ में? अभी देखो तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा 1500 रुपया भी रिस्क के ऊपर वापिस नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन गया। तो अभी थोड़ा चैलेंज लगा मुझे, पैसे का मोटिवेशन अलग होता है। तो मैंने फाइनली एकदम, मैं बोला अभी मेरे को चैलेंज दिया तो वापस उसको जोर लगा के पूरा कॉन्सेंट्रेट करके, एंड देन आई वेंट अप। व्हेन आई वाज फ्लाइंग, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड बोलते ना डर के आगे जीते। तो हम लोग कभी कभी दैट मोमेंट वी लिव, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन लाइफ। काफी लोग मुझे पूछते हैं कि खट्टी मीठी बातें कैसे शुरू हुई। जब भी मैंने स्टार्ट किया था 2007 में, तो उसमें से मैं कुछ भी बात आज नहीं बोल रहा हूँ। इट इज चेंजिंग, इट इज इवॉल्विंग। और आज मुझे देवराज जी ने सुबह में कल पूछा कि विनोद भाई आप गवर्नर कभी बन रहे हो? तो मैंने उनको बोला नहीं यार, अभी गवर्नर बनने का दिल नहीं होता है। बोले क्यों? तो मैं बोला देखो गवर्नर है ना, 30 जून को एक्सपायर हो जाता है उसका पोस्ट, आईपीडीजी हो जाता है, बाद में पीडीजी हो जाता है। बट मैं जो कर रहा हूँ ना, आई एम एंजॉयिंग दिस। रोटरी की खट्टी मीठी बात है, इसका एक्सपायरी डेट नहीं है। इसका एक्सपायरी डेट मैं जब भी जाऊंगा तब तक खुला है। सो आई एम गेटिंग द सेम एंथुसियाज्म, और मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक सो दैट इज हाउ आई एम लुकिंग एट इट।
आई थिंक रोटरी में दूसरी जो चैलेंज है सबसे बड़ी, वो छोटे छोटे क्लब के अंदर स्पीकर्स की है। अभी तो काफी क्लब 2 मीटिंग कर रहे हैं महीने में, लेकिन पहले 4 मीटिंग थे। तो अगर 4 मीटिंग के हिसाब से अभी भी अच्छे क्लब 4 मीटिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फेलोशिप, तो 52 मीटिंग्स इन अ ईयर, उसमें से आप 10 मीटिंग निकाल दो आपके ऑफिशियल मीटिंग, 42 स्पीकर आइडेंटिफाई करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। हो सकता है आप जैसे क्लब में तो प्रॉब्लम नहीं है, आपके वहां तो स्पीकर आने के लिए भी लाइन लगेगी, लेकिन जो छोटे क्लब है, इंटीरियर में क्लब है, वहां पे स्पीकर नहीं आते, 15 मेंबर 20 मेंबर। तो 2007-8 में गोपाल मंदे ने एक डायरेक्टर निकाला है, स्पीकर डायरेक्टर। तो मुझे भी फोन आया, बोले यार सब प्रेसिडेंट को रेडीमेड स्पीकर डायरेक्टर देना है। तो मैंने उनको मेरा डिटेल भेजा और उनको बोला कि आप मेरे नाम के नीचे है ना स्टार डालना और लिखना कि किसी भी क्लब को अगर कोई स्पीकर नहीं मिल रहा है या लास्ट मोमेंट में कोई स्पीकर कैंसिल होता है तो आई एम अवेलेबल। मैं सोचा हम पहले रोटरी में तो अपना कंट्रीब्यूशन दे, एंड बिलीव मी, जैसे वो डायरेक्टरी प्रीपेड्स में प्रेसिडेंट को मिला, आई वाज फ्लडेड विद द इनविटेशन। और कहां से, अंबरनाथ, डोंबिवली, भिवंडी, साउथ मुंबई, सब जगह से। और आज भी मैं बोलता हूं कि 10 to 15% क्लब ऐसे जिनको कल मीटिंग है तो आज तक उनके पास स्पीकर नहीं है। और मैंने 3 घंटे पहले भी कोई क्लब ने बुलाया तो मैं गया हूं वहां पे, एंड आई फील प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर दैट, बिकॉज ये जो 203 मेरे खट्टी मीठी बातों के सेशन हुए ना, थैंक्स टू दैट स्पीकर डायरेक्टरी। और खास करके मुझे दिवाली के टाइम पे अटेंडेंस नहीं रहता है, लोग बाहर जाते हैं, तभी ज्यादा इनविटेशन आते हैं। और मई जून में जब ये ओसीबी के बाद वो आईपीपी हो जाता है, वो टाइम पे कोई स्पीकर नहीं आता है या अटेंडेंस नहीं रहता है। बट आई लव दैट, मैं इतनी सारी जगह पे गया, तो आई थिंक this experience of 202 clubs has made me a good speaker. Not only that, I met more than 5,000 Rotarians and got opportunity to meet and connect with new friends. Those incidents I will share and conclude. Can you tell me how much time I have? Because I can go on. Aslam, how much time? Because ऐसा नहीं होना चाहिए हम दोनों ही है, बाकी सब लोग घर पे जाके खाना खा के सो गए। Yeah, and another 5 minutes is okay. Okay, fine. So I'll conclude with this incidents. तो ऐसा हो गया कि तो लास्ट मोमेंट में कोई भी क्लब को स्पीकर नहीं मिलता था, तो मेरे को रेफरेंस देते थे लोग, अरे नहीं विनोद से बात करो, इट इज अवेलेबल, विल कम। आपको मालूम है उस जमाने में हार्मोनी ग्रुप हुआ करता था, कुछ साल पहले हमारे गोरेगांव से कुछ बैंड्रा तक के क्लब मिलके हार्मोनी ग्रुप बनाया था, और उनका साल में 1-2 बड़े प्रोग्राम होते थे। तो एक दिन गोपाल मंदानिया का मुझे फोन आया कि विनोद सैटरडे को क्या कर रहे हो? मैं बोला गोपाल जी बोलिए ना, क्या काम है? बोले यार वो हार्मोनी ग्रुप का बहुत बड़ा फंक्शन है और एनुअल फंक्शन जैसा है, काफी लोग आते हैं उसमें, 400-450 का अटेंडेंस रहता है। तो मैं स्पीकर हूँ, लेकिन मेरा गला बहुत खराब हो गया है और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि मुझे बात नहीं करना। और मैं तो बोलता है एकदम फिर एंथुसियाज्म में आ जाता हूँ, जोर से चिल्लाता हूँ। तो मैं बोला ठीक है सर, जाके आता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोला थैंक यू। देन मैं बोला 1 मिनट गोपाल जी, लेकिन क्या टॉपिक पे मुझे बात करना? तो मेरे को बोला सेक्स एजुकेशन। तो मैं बोला यार गोपाल जी, मैं समझता हूँ तब तक आप भी वो फील्ड से नहीं हो, मैं तो रियल एस्टेट वाला बंदा हूँ, मैं ये टॉपिक पे क्या बात करूंगा? मैं बोला आप रोटरी का कोई भी टॉपिक दो, अपन बात कर सकते। बोलो नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, तू खाली मैं तेरे को प्रेजेंटेशन भेजता हूँ, तू ओपनिंग रिमार्क्स में एक जोक्स बोल देना और कंक्लूडिंग में एक शायरी बोल देना, बाकी प्रेजेंटेशन जो है वो चला देना, तेरा काम हो गया। मैं बोला देखो ये रिस्की है, बिकॉज टॉपिक ऐसा है, कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं बोल दूंगा ये आपने कराया, आपका प्रेजेंटेशन। बोले नहीं नहीं डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन भेजा एंड उतने में लेडी प्रेसिडेंट का फोन आ गया, बोले अरे थैंक यू विनोद जी, आपने लास्ट मोमेंट में बचा दिया, लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बोला नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, आई विल कम। देन शी सेड मीना जी को साथ में लेके आना। तो मैं बोला वैसे पत्नी आती नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई। तो वो बात करके मैं घर पे पहुंचा। जैसा घर पे पहुंचा तो पत्नी ने मुझे बताया अरे सैटरडे को कोई मीटिंग है ना? मैं बोला हाँ सैटरडे को मीटिंग है। बोले वो लेडी प्रेसिडेंट का फोन आया था, बोले आपको आने का है। मैं बोला चलती हो? तो बोले क्या टॉपिक है, क्या प्रोग्राम है? तो मैं बोला आई एम अ स्पीकर। बोले क्या टॉपिक पे बात करने वाला? मैं बोला अपन वो महाबलेश्वर में गए थे, पंचगिरी में, वो पैराग्लाइडिंग किया था। बोले हाँ हाँ। मैं बोला आई एम गोइंग टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ पैराग्लाइडिंग। तो उसको लगा अभी उसमें क्या मतलब,
तो बोले ठीक है तुम जाके आओ, मेरे को नहीं आना है। पत्नी नहीं आई, मैं गया वहां पे और बड़ा क्राउड था। गोपाल जी का प्रेजेंटेशन अच्छा था, मैंने एक दो जोक मार दिए, शायरी बोल दिया, सब खुश हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन देते। मैं उस बात को भूल गया। दूसरे दिन गोपाल जी का फोन आया, बोले थैंक यू यार, बहुत मजा आया तुमने, सो नाइस ऑफ यू, प्रेसिडेंट का फोन आया, देन आई फॉरगॉट दैट। 2 महीने के बाद मैं घर पे पहुंचता हूँ तो पत्नी ने 2 इनविटेशन कार्ड थमा दिया था। संजीवनी बिलांदे का म्यूजिकल प्रोग्राम एट बायदास बाय हार्मोनी ग्रुप। तो उसको मालूम नहीं कि ये वही ग्रुप का प्रोग्राम। उसने बोला ये संजीवनी का म्यूजिक का प्रोग्राम है, मैं आऊंगी साथ। तो मैं बोला ठीक है अपन जाएंगे, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। दिन आया, उस दिन मैं जल्दी पहुंचा, घर से बोरेवले से निकला एंड जैसे बायदास में पहुंचे हम लोग और ऑडिटोरियम में एंट्री कर रहा हूँ, मैं कुछ सोचूं उसके पहले सामने से वो महिला प्रेसिडेंट हो, 2 महिलाओं को लेके आ रही, मैं कुछ ज्यादा सोचूं उसके पहले वो नजदीक आ गए, मेरे पास कोई चारा नहीं था। पत्नी को इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा ये मेरी पत्नी मीना, और वहां से वो प्रेसिडेंट ने उठा लिया, बोले मीना जी आपके हस्बैंड की क्या कहने। बोले अच्छा, अरे आप उस दिन आए नहीं। बोले हाँ मुझे कुछ काम था। अरे क्या बात करते, यू नो फैंटास्टिक प्रोग्राम, ही गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। पत्नी बोली अच्छा, अरे ही इज एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट। जब ये बोला तो पत्नी से रहा नहीं गया। बोले क्या खाक, व्हेन ही ट्राइड फर्स्ट टाइम ही कुडंट डू इट। So, बहुत सारी बातें होती है हमारे साथ रोटरी में। और आई थिंक मेरे पास तो इतने सारे इंसिडेंट्स है, इतनी सारी स्टोरियां है रोटरी के बारे में। मैं हर एक चीज के ऊपर आई कैन कीप ऑन शेयरिंग फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स। मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट असेंबली या डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में लाइव ऑडियंस में अगर मुझे छुट्टा दौड़ दे देवे ना, मैं सबको हंसा के पागल कर दूंगा। I personally owe a lot of things to Rotary. I think whatever I am today as an individual, as a professional, as a family man, I think I owe everything to Rotary. Rotary is a fantastic organization. मुझे याद है रोटरी ज्वाइन करने के बाद में मैं मंदिर बहुत कम गया हूँ, बहुत कम गया हूँ, बिकॉज मुझे लगता है एवरी टाइम आई गो टू रोटरी सर्विस प्रोजेक्ट और अ रोटरी मीटिंग, आई थिंक आई एम बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग. Rotary has taught me so many things. My personality, the way I dress up, the way I speak, my communication skill, organizing capacity, leadership. Believe me, I didn't know what is the meaning of leader when I came to Mumbai. Leader क्या होता है उसकी डेफिनेशन मुझे नहीं मालूम थी, बिकॉज मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड एकदम बहुत पुअर था. मेरा कुछ जनरल नॉलेज है, इतने सारे दोस्त, इतने सारे लोग मिले हैं मुझे रोटरी में, और मैंने मेरे 25 साल के अंदर मेरे क्लब के 24 प्रेसिडेंट जो अलग अलग बिजनेस से है, अलग अलग एजुकेशन से है, अलग अलग कास्ट से है, अलग अलग रिलीजन से है, 25 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और 25 आरआई प्रेसिडेंट को मैंने रोटरी न्यूज के थ्रू पढ़ा है. आई एम एक्सपोज टू 75 काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप. आई थिंक ये जो एक्सपीरियंस है ना, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रोटरी, मैं ऐसा समझता हूँ ये रोटरी का यील्ड है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू रोटरी फॉर गिविंग सो मेनी फ्रेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड. और हम लोग जब लॉकडाउन में थे तो कुछ बातें मेरी लाइफ की फिलोसॉफी और रोटरी से भी कुछ सीखा. कंक्लूड करते करते कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ कि हम लोग सब इस दुनिया में आए हैं तो जन्म है तो मृत्यु निश्चित है. और मुझे लगता है लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हमने इस बात को समझा है कि भैया कुछ भी हो सकता है, और हमने हमारे आसपास के बहुत सारे लोगों को कोरोना होते हुए देखा है. तो हम लोग रियलिटी के बहुत करीब आ गए. तो कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, हम सबको वापस जाना तय है, वापस जाना तो तय है. इसलिए मन भर के जिए, मन भर के जिए, पर मन में भर के मत. No, we hold lot of thing in our, we hold money, we hold grudges. हम लोग यहाँ तक कि किसी को थैंक यू बोलना है, कांग्रेचुलेशन करना है, सॉरी बोलना है, we are holding that. I think it is very important that we don't hold it. The moment you release that, it's a beautiful moment for the life. मन भर के जिए, मन में भर के मत जिए, छोड़िए शिकायत. We are always in complaint mode. अरे यार ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है, मजा नहीं आता है.
अरे वो अभी तक वाइन शॉप नहीं खुला है। छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। I think we should be grateful for what we have. I think we all are who are online right now. हम लोग विश्व की जो आबादी है उसके 1% लोगों में से है जिनके पास इतनी सारी फैसिलिटी, अच्छा हेल्थ है, अच्छे कपड़े, अच्छा एजुकेशन है, अच्छा घर है, अच्छा बिजनेस है, एंड स्टिल वी कंप्लेन। सो छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग अराउंड यू। जितना है पास, जितना है पास, पहले उतना तो मजा लीजिए। हम लोग हमारे पास जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं है और कुछ नया लेने के चक्कर में भाग रहे थे। आई थिंक लॉकडाउन ने ये डिस्टिंक्शन लोगों को जरूर दिया है कि जितना है पास, पहले उतना तो मजा लीजिए। चाहे जिधर से भी गुजरिए, चाहे जिधर से भी गुजरिए, एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। मतलब आप जहां भी जाओ एकदम रौनक आ जानी चाहिए, ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, उम्र का हर एक दौर मजेदार है। Look at Amitabh Bachchan. At 78, that guy is so committed and he is giving more than 110%. So हम लोग हमेशा बोलते हैं अरे अभी क्या करने का, अभी रिटायर्ड हो गए, हम बच्चे थे तभी ठीक था, कॉलेज में बहुत मजा था। ऐसा कुछ नहीं है। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी हर उम्र का मजा लीजिए, क्योंकि वापिस जाना तो तय है, वापिस जाना तो तय है। Thank you very much, President Manoj and all the members of Rotary Club of Bombay Northwest for your patient hearing and lovely attention. So nice one. Thank you.